Hello everyone, welcome to another session of accounting. How are you? I hope you all are doing well. We are going to start this session today with trial balance and rectification of errors. राइट एज यू नो हमने लास्ट सेशन में भी ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिस्कस किया था. आज हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल फर्दर अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स एज टू हाउ डू वी रेक्टिफाई द एरर्स दैट एंटर that are there or that happen with respect to trial balance, right? That reflect in a trial balance, right? तो हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या कवर किया था. आई होप आप लोगों को सब समझ आया और आपको सब याद है. सो वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज इट इन 2 minutes एंड देन वी आर गोइंग टू बिगिन दिस सेशन और हम आगे कंटिन्यू करेंगे. लेट्स बिगिन. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, राइट? जिसमें सारे के सारे लेजर बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं. Statement where all the ledger balances are transferred, right? Whether it's a debit balance, whether it's a credit balance, all these balances are transferred in the trial balance. And on why is trial balance so important? Because on the basis of trial balance हम financial statements prepare करते हैं. Trial balance also tells us about the arithmetical or mathematical accuracy. ठीक है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी या फिर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का बताता है ट्रायल बैलेंस. एक अरिथमेटिक चेक होता है. वी ऑल्सो डिस्कस दैट अ ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज बैलेंस. What do you mean by it should balance? It means that the debit total should be equal to the credit total. When we're talking about a trial balance, the total of the debit side should be equal to the credit side. If the debit is not equal to credit, that means there is something wrong. There is an error, right? This is what we discussed, right? But we also discussed that even if the total of the debit side is equal to the credit side, that does not mean, that is not the absolute proof that the trial balance is free from error, right? So even if this debit and credit are equal, then also it can happen that the trial balance contains an error, right? So let's move forward. थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको. ये हमने डिस्कस किया था, राइट? दीज वर द मेन एस्पेक्ट्स. देन हमने बात की थी एरर्स क्या क्या और किस किस तरीके के हो सकते हैं. उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं. ये था ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट. हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे कि ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं. या तो हम बैलेंस मेथड यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखते हैं. द सेकेंड मेथड दैट वी कुड यूज वाज totals method, right, where we added the totals. And the third one was total कम balance method जहाँ पे total और balance दोनों ही ट्रांसफर करते थे. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि balance method सबसे ज़्यादा यूज होता है. Okay, and whenever we draw the trial balance we also use the balance method, right? Then we discuss the objectives. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एरर्स को लोकेट करने में हेल्प करता है. देन फर्दर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेल्प होती है, राइट? एंड देन वी डिस्कस्ड फर्दर the significance, right? We discuss all these methods, we already have discussed that. Then we also discuss the significance of tallying of trial balance, right? That why trial balance needs to tally. क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो उसका मतलब क्या है कि हमने सारे अकाउंट्स के दोनों एंट्रीज, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज सही से ट्रांसफर करी हैं, सही से पोस्ट की हैं, तभी आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आएगा. देयर कुड बी अदर एरर्स. We'll discuss what kind of errors, but if debit and credit are equal, that means कि आपने at least दोनों sides, दोनों aspects record किए हैं transaction का. I hope this is clear. This is very important point that I'm stressing upon. So let me quickly repeat this point and we are going to start the discussion from this point only, right? ठीक है, हमने डिस्कस किया था that first of all ट्रायल बैलेंस अगर टैली बैलेंस नहीं हो रहा तो देयर आर अ लॉट ऑफ एरर्स. तो एरर्स है ही,
right? But even if trial balance is balancing matlab debit and credit are equal, then also there could be an error, right? Okay, because there are certain errors which do not affect the trial balance. Do not affect मतलब फिर भी टैली हो जाएगा। और ये ऐसे किस तरीके के एरर्स होंगे, जिन जो से डेबिट और क्रेडिट तो सही हुआ है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हुआ है, ठीक है, सच दैट डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है, बट से रॉन्ग अकाउंट में कर दिया। से सेल्स थी राम को, हमने शाम को कर दिया, राइट, इंस्टेड ऑफ राम वी रिकॉर्डेड श्याम, तो अकाउंट रॉन्ग हो गया, देयर इज स्टिल एन एरर। बट क्योंकि डेबिट में भी से 100 रुपीज की थी, क्रेडिट में भी 100 रुपीज की थी, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ एरर्स जो होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, राइट। ओके, सो आज हम अलग अलग तरीके के एरर्स डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि इन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, राइट। ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी, लेट्स बिगिन। So what are the different types of errors, right? If we talk about the types of errors, we classify the types of errors into four types, right? The first one is error of commission, second is omission, third is principal, and fourth are compensating errors, right? One by one, let's discuss. Error of commission क्या होता है? जब आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग राम के अकाउंट की जगह पे श्याम के अकाउंट में डाल दिया, राइट, रॉन्ग पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में सही जगह पे पोस्ट नहीं हुआ है, राइट। रॉन्ग टोटलिंग, टोटलिंग गलत कर दिया आपने, राइट, टोटल गलत किया, रॉन्ग बैलेंसिंग की, अगेन रॉन्ग कास्टिंग इज अगेन टोटलिंग, राइट। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंट्री ही गलत पास करी है आपने, राइट, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, बुक्स में रिकॉर्ड ही गलत किया है। सो दीज काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन, राइट। Now let's see, for example, let us see this example. I hope it will be clear. Just give me a moment. Yes. So the example is Rajhans trader ने पे किया 25,000, right? Rajhans trader paid 25,000. Just a second, let me see if I can make it full screen. All right, let's leave it for now. I think it's better if we continue like this only. Doesn't matter. Okay, Raj Hunt's traders. Let's see this transaction and let's try to understand what how they are seeing this example. ये कैसे error of commission हो रहा है? Raj Hunt's traders paid 25,000 to Preetpal traders. ठीक है? Raj Hunt's. Let's take Raj Hunt's as R. Let's take Raj Hunt's as R. ठीक है? And let's take P. P was a creditor. P is a supplier. ठीक है, तो जब सप्लायर को पे किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए आर की बुक्स में, पी डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड इट शुड हैव बीन 25,000। लेकिन हमने क्या किया, कैश बुक में तो कैश वाली एंट्री, कैश बुक में कैश में तो सही रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, लेकिन प्रीतपाल ट्रेडर्स को जब हमने करा तो इंस्टेड ऑफ 25,000 वी wrongly debited him by only 2,500, राइट, रॉन्ग डेबिट कर दिया। अब आपका क्रेडिट और डेबिट का मैच नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि डेबिट आपने 2,500 से किया while क्रेडिट आपने 25,000 से किया। सो दिस काइंड ऑफ एंट्री इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड दीज काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कमीशन हमेशा इफ़ेक्ट करेगा। देयर कुड बी समटाइम्स कि सपोज़ आपने प्रीतपाल को क्रेडिट करना था, आपने कर दिया क्रेडिट से रेनू को, राइट, यू क्रेडिटेड रेनू, ठीक है, मतलब डेबिट करना था प्रीतपाल को, दिस वाज द क्रेडिटर, लेकिन आपने गलती से रेनू को डेबिट कर दिया एंड से अमाउंट आपने 25,000 नहीं किया। सो नाउ what is the entry that you've passed? Let me just open a PPT to make it clear. I think it would be better. Just a second.
सो ठीक है, आपने इंस्टेड ऑफ प्रीतपाल एंड राज, लेट मी जस्ट ड्रॉ, yes, let me just tell you the transaction we are discussing. Give me a moment. Right, we are discussing the error of commission, right? एंड हमने फर्स्ट डिस्कस की थी कि पी और आर के बीच में ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आर इज अ क्रेडिटर और पी ने आर को 25,000 पे किए, तो द राइट एंट्री शुड हैव बीन दैट, what should have been the right entry? Right entry should have been R debit, cash account credit and 25,000. ठीक है, और हमने इस केस में देखा कि आपने करा क्या है. Instead you have done R debit 2500 but cash account credit with same 25,000, right? ठीक है, ये गड़बड़ हुई. तो हमने कहा कि in this case, right, trial balance will be affected. ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट रॉन्ग अमाउंट से हुआ है. बट let us take another case. Let us take this second case, right? Where suppose पी और आर राजहंस ट्रेडर्स के बीच में ही ये ट्रांजैक्शन हुई है, 25,000 की ही हुई है, लेकिन आपने आर को करने की बजाय से एक्स को कर दिया, राइट? सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव पास द एंट्री एक्स डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, सो यू हैव डन इट इनटू अ रॉन्ग अकाउंट. ठीक है, रॉन्ग अकाउंट में पास की, अमाउंट 25,000 ही है. इन दैट केस डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे. दिस इज ऑल्सो एन एरर ऑफ कमीशन ओनली. हाउएवर your trial balance in this case will match. ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा. तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जनरली एरर ऑफ कमीशन ऐसे हैं जहां पे ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. ठीक है, so these kinds of errors are errors of commission, right? Let us take this second error, second type of error. Let us take the error of principal, right? Let us take this error. Let's go. Okay, let's come to omission a bit later, right? Let's first discuss principle and probably next I'll come to omission. Yes, let's move. Okay, what is the error of principle? ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कोई एरर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो चीज रेवेन्यू नेचर की थी उसको कैपिटल नेचर का रिकॉर्ड कर लिया, या जो चीज कैपिटल नेचर की थी उसको रेवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड कर लिया, तो दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट? दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट? इन दिस केस अगेन हमारा क्या होगा, हमारा एक एरर हमने कंडक्ट किया है, रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग ट्रांजैक्शन या गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है, सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम, right? But this kind of entries, why are these so important? Why do these make so much क्यों हमारे लिए इतनी ज़रूरी है? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. ये हमने पहले भी समझा है कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा. अगर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू किया है तो इट कैन लीड टू ईदर दी अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स. या तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या फिर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और असेट और लाइबिलिटीज में भी फर्क आएगा, राइट? ओके, ओवर स्टेटिंग ऑफ इनकम, अंडर स्टेटिंग ऑफ इनकम और ओवर और अंडर स्टेटिंग ऑफ असेट्स, ये सारे इम्पैक्ट आएंगे. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको सही तरीके से रिकॉर्ड करें. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस केस में हम कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक असेट पे आपसे इंस्टॉलेशन कराते हैं, राइट, या सपोज बाद में आप एक बड़ा पार्ट मेजर रेनोवेशन कराते हैं उस एसेट में, से बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज एन एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, आप उसमें बाद में मेजर रेनोवेशन कराते हैं, सब सच दैट कि उसकी वैल्यू में मेजर एडिशन होता है, तो हमने ये डिस्कस किया है कि इसको हम कैपिटलाइज करते हैं. वी विल नॉट charge this expenditure as repairs, rather we will add this expenditure, this renovation. से बिल्डिंग थी 1 लाख की,
आपने 50,000 का रेनोवेशन कराया, देन वी आर गोइंग टू ऐड दिस रेनोवेशन टू द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ओनली, राइट? तो क्या होगा एंट्री? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000, ठीक है? बट दिस इज द करेक्ट एंट्री. If you recorded this entry as repairs debit, cash account credit 50,000, then this becomes an error of principle, right? This becomes an error of principle क्योंकि ये जो कैपिटल ट्रांजैक्शन थी एसेट में ऐड होना चाहिए था, आपने उसको रेवेन्यू बना दिया, राइट? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड काइंड ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन का मतलब हम सबको पता है. ओमिशन का मतलब होता है कि हमने मिस कर दिया, छोड़ दिया, गलती से छूट गया. सो देयर कुड बी ईदर फुल ओमिशन और देयर कुड बी पार्शियल ओमिशन, राइट? बिफोर जस्ट कमिंग टू दिस अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है? दीज डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा आपका, right? Okay, now let's take this next kind of errors, full omission or partial omission. full omission का क्या मतलब होता है? full omission का मतलब होता है जब पूरी एंट्री, say you have missed the whole entry, you have not recorded an entire transaction. say आपने क्रेडिट सेल्स की आकृति को फॉर ₹4,000, बट आपने ये पूरी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं की, यू नॉट रिकॉर्डेड द होल ट्रांजैक्शन, देन दिस इज फुल ओमिशन. एंड क्योंकि ये पूरी रिकॉर्ड नहीं की, दिस डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ना डेबिट साइड में कुछ गड़बड़ हुई ना क्रेडिट में हुई, आपने डेबिट और क्रेडिट इक्वली आ रही है, आपने दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. Now what is the case of partial omission? इसी केस में, let's suppose इसी केस में आपने इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? The correct entry would have been आकृति डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 4,000. सपोज आपने क्या कर दिया, इसको रिकॉर्ड करते वक्त सेल्स को तो 4,000 कर दिया, आकृति के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आकृति के अकाउंट में नहीं डेबिट किया, then this is partial omission. Then this kind of transactions affect trial balance और trial balance tally नहीं होगा आपका, right? Okay, so this is the third kind of errors. Now let's talk about the fourth kind of errors, which are compensating errors. Compensating errors, ठीक है, such that net effect आपका जीरो हो जाता है. ये एरर्स जिसमें आपने गड़बड़ तो की है लेकिन नेट इफेक्ट जीरो होगा, इसलिए दीज ऑल्सो डू नॉट और डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. टीबी को ये अफेक्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट. When two or more errors are committed in such a way that net effect of this errors is nil, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज परचेजेस को ओवरकास्ट कर दिया बाय 10,000. ओवरकास्ट का मतलब क्या है कि परचेजेस डेबिट होती है, डेबिट को बढ़ा दिया 10,000 से, राइट? ओवरकास्ट, ठीक है, ओवरकास्ट कर दिया, बढ़ा दिया 10,000 से, ठीक है, तो आपका डेबिट का टोटल 10,000 से बढ़ गया बिकॉज परचेजेस आर डेबिटेड, राइट? ओके, बट ऑन दी अदर हैंड
आपने परचेजेस को तो डेबिट किया 10,000 से, बट ऑन दी अदर हैंड सेल्स रिटर्न जो भी डेबिट बैलेंस है, सेल्स रिटर्न ऑल्सो हैज अ डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न बुक को अंडर कास्ट कर दिया, यहाँ पे -10,000 कर दिया, तो डेबिट का टोटल 10,000 से पहले बढ़ा और फिर 10,000 से कम हो गया, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया। ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एरर्स तो हमने कमिट किए हैं, सो सच काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, राइट? एंड these errors also do not affect the trial balance, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, अब हम करते क्या है और कैसे करते हैं इसको, राइट? इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए? तो अकाउंटेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो एरर को डिटेक्ट करे और लोकेट करे। कैसे करेगा? सारे टोटल्स को दोबारा चेक करे, ठीक है? अकाउंट हेड्स जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहे हैं उनको मैच करे लेजर से, देखे कि सारे बैलेंसेस आपने ट्रांसफर किए हैं नहीं किए, ठीक है? कोई चीज़ ओमिट तो नहीं हुई है, यू हैव टू सी। कंपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर टू चेक एडिशंस और डिलीशंस ऑफ एनी अकाउंट। ऑल्सो वेरीफाई वेदर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन अकाउंट, राइट? तो पहले आप इसको प्रायर ईयर के ट्रायल बैलेंस से भी चेक करो कि कोई अमाउंट मिसिंग तो नहीं हो गया, कुछ एडिशन तो नहीं कर दिया, गलती से ऐड हो गया हो, कुछ मिस कर दिया हो, राइट? सो यू नीड टू परफॉर्म ऑल दी चेक्स अगेन, ठीक है? दोबारा से सारे बैलेंसेस की चेक चेक करो कि सही से किया नहीं, टोटल सारे सही है या नहीं, पोस्ट तो सही से किया है, रिकॉर्ड तो एंट्री सारी की है नहीं, तो आपको सारा चेक करना पड़ेगा ताकि आप एरर्स को डिटेक्ट करें, right? This is what an accountant is required to do when the trial balance does not tally, ठीक है? जब टैली नहीं होगा तो एक अकाउंटेंट को ये करना चाहिए, राइट? आई एम सो सॉरी। ओके, ऑलराइट, ओके, what else could be done? If the difference between the debit and credit columns is divisible by zero, by 2, there is a possibility that an amount equal to half of the difference have been posted to the wrong side। मतलब क्या है कि अगर डिविजिबल बाय 2 है तो मतलब क्या आपने गलती से, ठीक है? इफ द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स इज डिविजिबल बाय 2, there is a possibility an amount equal to half of the difference may have been posted to the wrong side। मतलब आपको 50 डेबिट करना था, 50 क्रेडिट करना था, गलती से 100 के 100 डेबिट कर दिया, तो ये हो सकता है, राइट? यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका मतलब है गलती से आपने 50 को गलत साइड पे पोस्ट कर दिया, तो दिस कुड ऑल्सो हैपन, राइट? ओके, सो दिस इज अनदर थिंग। डिफरेंस में ऑल्सो इंडिकेट कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, तो आप सारे एरर्स को ऐसे आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? अच्छा, अब कैसे डील करेंगे हम, रेक्टिफाई कैसे करेंगे इन एरर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन, एरर्स को फाइंड कर लिया, ट्रायल बैलेंस से इंडिकेट कर दिया, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? नाउ फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन वी क्लासिफाई एरर्स इनटू टू टाइप्स। हम कहते हैं एरर्स दो तरीके के हैं, दोज विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमारा टीबी टैली हो जाता है, एंड देन देर आर दोज एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जहां पे हमारा टीबी टैली नहीं होता। दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं। फर्स्ट केस में हम एक एंट्री, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। ओके, आई हैव रिटन इट ऑपोजिट, आप इसको समझ लीजिए कि व्हाट आई मीन इज हम यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं और जो भी गलती है उसको करेक्ट कर देते हैं, राइट? बट इन दिस केस क्योंकि एक एस्पेक्ट रिकॉर्डेड एक नहीं है, हम जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते, तो हम इस केस में एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट, राइट? ठीक है, अब ये डिस्टिंक्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, इसका मतलब उनकी दोनों जगह पे गलती हुई है, राइट? डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती है, पूरा एंट्री में गड़बड़ है, राइट? सो बोथ द एस्पेक्ट्स आर रॉन्ग, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ जर्नल एंट्री। लेकिन जहां पर
हमारा टीबी टैली नहीं हो रहा, इसका मतलब एक अकाउंट में गड़बड़ है, राइट? सो देयर इज वन एस्पेक्ट दैट इज रॉन्ग, राइट? तो हम इनको नलिफाई नहीं कर सकते एंट्री पास करके, इसके लिए हमको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा विच इज सस्पेंस अकाउंट, राइट? डू नॉट वरी, अगर समझ नहीं आ रहा हम इसको आगे देखते हैं, राइट? पहले ले लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, जहां पर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है। तो ये दो अकाउंट में होते हैं सच दैट डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है, दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्डेड हैं, राइट? तो इनको कैसे करेक्ट करते हैं? So instead of coming to theory, I'm going to take you to some of the entries first so that we can understand how it is done. Then we'll probably come back to theory. ठीक है? Yes. Let's take this A part. Okay, just second. This document is creating a bit trouble for me. Yeah, it's working now. Okay. So credit sales to Mohan rupees 10,000 were not recorded. Let's see this A part. I'm just highlighting for you to see. Credit sales to Mohan was 10,000 were not recorded in the sales book. This is an error of complete omission. पूरी की पूरी एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की, राइट? सो दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट omission, राइट? एंट्री क्या होनी चाहिए थी यहाँ पर? एंट्री शुड हैव बीन क्रेडिट सेल्स है मोहन के लिए, तो व्हाट शुड हैव बीन द एंट्री? मोहन डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। आपने करी नहीं है तो आप सीधा ही एंट्री अब पास कर देंगे, तो उसके बाद ये एरर आपका रेक्टिफाई हो गया। सो यू आर गोइंग टू पास दिस एंट्री एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई दिस एरर। नेक्स्ट लेट अस सी दिस वन, ठीक है? क्योंकि ये कंप्लीट ओमिशन है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, राइट? और आपको पता है हम वही एरर्स के साथ डील कर रहे हैं जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा। फिलहाल वी आर डीलिंग विद दैट कैटेगरी, राइट? ओके, let us see the second part. Credit sales to Mohan was 10,000 was recorded as 1,000 in the sales book, right? अब इसमें देखो एरर कैसे होता है, राइट? इस केस में ये कह रहे हैं कि क्रेडिट सेल थी 10,000 की, एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन आपने इसकी जगह पे 1,000 रिकॉर्ड किया है, तो मतलब जो एंट्री 10,000 के साथ होनी चाहिए थी वो 1,000 की है। तो आप अब क्या करेंगे? एक एंट्री पास कर दीजिए एडिशनल अमाउंट के साथ, मोहन को डेबिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट कर दो, 9,000 और कर दो, सो दैट द नेट इफेक्ट बिकम्स कि मोहन इज डेबिटेड बाय 10,000 एंड सेल्स इज क्रेडिटेड बाय 10,000। सो यू पास एन एंट्री टू रेक्टिफाई दिस एरर, राइट? एज यू कैन सी इन्होंने यही किया, ठीक है? ओके, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, राइट? एंड देन दे हैव पास्ड अनदर एंट्री जहां पे 9,000 का इफेक्ट डाला, राइट? सो इन एरर्स दैट इफेक्ट बोथ द अकाउंट्स, हमको बस एक एंट्री पास करनी है जिससे नेट इफेक्ट करेक्ट एंट्री आ जाए, राइट? करेक्ट करना है उस एरर को। अब क्या किया? होना क्या चाहिए था? मोहन डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000। कर क्या दिया आपने? आपने गलती से कर दिया इसको 12,000, ज्यादा कर दिया, रिवर्स एंट्री पास कर दीजिए। अब आप कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट मोहन क्रेडिट 2,000 such that the net effect comes to be this only। देखिए, समझ गए? So this is also an error of commission, right? ठीक है? Let's see the next part, D part. Credit sales to Mohan was 10,000 was recorded in the sales book but posted to Ram's account। फिर से error of commission। होना क्या चाहिए था? मोहन डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000, कर क्या दिया आपने? मोहन की जगह पर राम को कर दिया। जो एंट्री आपने पास की है वो है राम डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000। सेल्स सही कर दिया आपने, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सेल्स इज फाइन। तो अब एंट्री क्या होगी, राम को फालतू में डेबिट कर दिया, मोहन डेबिट होना चाहिए था, तो विल पास द एंट्री मोहन डेबिट राम क्रेडिट 10,000. So this would be the correction entry. ठीक है, let's move ahead. Let's see E part. ठीक है, rent paid was 2,000 was wrongly shown as landlord's account. Rent paid है, rent account में जाना चाहिए था, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, पर्सनल अकाउंट एक्सपेंस है, राइट, ओके, इट्स पेड, कैश में पे किया आपने, राइट, सो कैश में रिकॉर्ड होना चाहिए था, बट आपने इसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, इसको पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि ये नॉमिनल आपका रेंट में होना चाहिए था। तो अब आप क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर देंगे, 2K से, ऑलराइट, रेंट अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड क्रेडिट 2K 2,000. ठीक है, दिस इज अ करेक्शन एंट्री. ठीक है, ओके, सो दीज वर दी एरर्स वी डिस्कस्ड. जहां पे प्रॉब्लम क्या थी, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है इन सब केसेस में, राइट, यहाँ पर दो अकाउंट्स इफेक्टेड है, देयर आर टू साइडेड एरर्स, टू और मोर अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं. तो हम इसको कैसे करते हैं करेक्ट, हम इसको एंट्री पास करके करेक्ट करते हैं. अगर अगर सपोज ज्यादा हमने अमाउंट का डिफरेंस है, तो अगर ज्यादा हमने, जैसे हमने गलती से ज्यादा अमाउंट कर दिया था, 12,000 कर दिया था, तो हमने रिवर्स एंट्री पास कर दी, राइट, और अगर हमने कम अमाउंट कर दिया तो हमने सेम एंट्री डिफरेंस ऑफ अमाउंट के साथ कर दिया. तो हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं जिससे हम उसका इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ, राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ and discuss the second type of errors which affect the trial balance. ये वो एरर्स है जहां पे वन इफेक्ट या वन एस्पेक्ट गलत रिकॉर्ड किया है या वन एस्पेक्ट में गड़बड़ है. इन दिस केस वी ओपन एन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट, जहां पे हमको पता नहीं है कि एक अकाउंट में तो पता है गड़बड़ है, लेकिन उसके अगेंस्ट कहीं और गड़बड़ ही नहीं है, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, राइट. सस्पेंस अकाउंट में हम चीजें डालते हैं, राइट. तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे डील करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और फिर इनको देखते हैं, इनको रेक्टिफाई करते हैं, राइट. सो लेट अस सी अबाउट दीज. फॉर एग्जाम्पल, just give me a moment. Yeah, if suppose let us discuss if an error is in the books of original entry. ठीक है, अगर आपने पहले ही उसको डिस्कवर कर लिया कि देयर इज एन एरर, यू दैट कैन बी करेक्टेड, राइट, ओके. तो इफ देयर इज एन एरर, आप उसको डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. कैसे, आप उसके एक सिंगल लाइन डालकर आप राइट अमाउंट डाल सकते हैं वहीं पे. सो यू कैन राइट द सिंगल लाइन एंड राइट द डायरेक्ट अमाउंट. हम कभी भी एरर्स को काट के, ओवर राइट करके, इरेज करके उसको करेक्ट नहीं करते, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि हमने अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है. We have tried to do an accounting fraud. We've tried to do an accounting manipulation. Right? Okay. तो इसके बजाय what we try to do? We rather try to एक सिंगल लाइन से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उस तरीके से we try to do it. ठीक है, okay. Now let us see what happens if there is a problem, right? Suppose let us take an example here कि शाम का अकाउंट was credited short of 190. शाम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 190 होना चाहिए था, लेकिन कम पड़ रहा है, राइट. देयर इज सम एरर. क्यों आ रहा है हमको नहीं पता, दूसरा अकाउंट क्या है, किस वजह से एरर आ रहा है हमको नहीं पता, बट से 190 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू
190 और हमने वो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ओके 190 का हम पर्टिकुलर्स में दे देते हैं, राइट, वी राइट द एक्सप्लेनेशन इन पर्टिकुलर्स, एंट्री पास कर देते हैं। सो दिस इज वन थिंग विच कैन बी डन। एक तो आप, अगर आपको पहले ही पता चल गया तो आप एक लाइन डाल के उसको करेक्ट कर लीजिए, या फिर आप एक ऐसे पर्टिकुलर्स में एंट्री डालिए और दिखा दीजिए। दिस इज वन थिंग दैट कुड बी डन, राइट। अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस द सस्पेंस अकाउंट वंस, ठीक है। अब हमको पता है कि सस्पेंस अकाउंट हम क्यों ओपन करते हैं, वेन एवर देर इज अ वन साइडेड एरर, राइट। अब एरर है, अकाउंटेंट को पता है कि एरर है, एक साइड एस्पेक्ट पे एरर है, लेकिन अकाउंटेंट तो वहाँ रुक नहीं सकता ना, अकाउंटेंट को अपनी बुक्स वगैरह मेंटेन करनी है, कंप्लीट करनी है। सो इन दैट केस हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, जिसमें हम सारा जो भी चीज़ गड़बड़ है, जो भी एरर है, वो ट्रांसफर कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये सेल्स जर्नल है, टोटल सेल्स हुई है 50,000 की, राइट। हाउएवर हमने दिवाकर एंड सन्स का 15,000 ओमिट कर दिया, ठीक है, ये हम ट्रांसफर करना भूल गए। तो हमारा डेबिट जो डेटर्स होता है वो अब कितने से हो रहा है, 35,000 से, और सेल्स अकाउंट में टोटल का टोटल 50,000 चला गया, राइट। इफ यू कैन सी, इफ आई जस्ट मूव डाउन, सो ये देखो अशोक ट्रेडर्स में 20,000 का अमाउंट अशोक ट्रेडर्स में चला गया, राइट। सिमिलरली लेट्स मूव डाउन, बिमल सर्विस सेंटर लेते हैं, अगेन 10,000 पूरा चला गया, एंड चोपड़ा में भी 5 चला गया, लेकिन दिवाकर में कुछ नहीं गया क्योंकि दिवाकर में हम करना भूल गए, राइट। ओके, देन इन दैट केस what should have been the rectifying entry? The rectifying entry should have been कि आप दिवाकर को के अकाउंट में 15,000 डाल दो, दैट इज द अमाउंट विच इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस, राइट। ठीक है, 15,000 से डिफर करेगा, राइट। सो द डिफरेंस विल टेम्परली बी पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस विल बी एग्रीड। यहाँ पे हमको पता है कि डिफरेंस जो है वो दिवाकर के अकाउंट की वजह से आ रहा है कि हमने 15,000 ट्रांसफर नहीं किया। समटाइम्स वी विल नॉट नो द डिफरेंस, ठीक है, हमको पता नहीं होगा, बहुत सारे एरर्स होंगे और कोई भी अमाउंट सीधा नहीं दिखेगा। इन दैट केस हम क्या करें, कैसे टैली कराएं? तो उस केस में हम टेम्परेरीली एक अकाउंट खोल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट, और क्योंकि डेबिट हो रहा है वहां पे 35,000 से, क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो डेबिट साइड इज शॉर्ट, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 15,000 इंस्टेड ऑफ दिवाकर। वहां पे हमको पता है इसलिए हम दिवाकर ले रहे हैं, लेकिन जहां हमको नहीं पता तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000, और ये डेबिट और क्रेडिट फिर इक्वल हो जाएगा और ये मैटर क्लोज हो जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ वी डील विद दिस काइंड ऑफ एंट्री। सस्पेंस को डेबिट करा 15,000 से, टोटल डेबिट का हो गया 50,000, क्रेडिट का भी टोटल हो गया 50,000, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी डील विद अ सस्पेंस अकाउंट, ऐसे हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब एक बार हम कुछ और एंट्रीज देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे प्रोसेस को यूज करते हैं, राइट। ओके, पहले हम एक बार स्टेप्स देख लेते हैं इसके। यस, while rectifying errors using suspense account following steps are taken। यहाँ पे देख रहे हैं कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं रेक्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा अकाउंट है जिसमें एरर हुआ है, फिर हम देखते हैं कि कौन सी साइड शॉर्ट है या कौन सी साइड में ज्यादा है। तो जो भी साइड शॉर्ट है उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राइट। ठीक है, अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट कर देंगे, नहीं तो अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट कर देंगे, राइट। और उस एरर को कंप्लीट करेंगे, राइट, बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, राइट। उस एरर को कैसे कंप्लीट करेंगे, बाय कंप्लीट द जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट एज द अदर अकाउंट अफेक्टेड अदरवाइज, राइट। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि हम ये क्या बोल रहे हैं। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, राइट। देखो ए वाला पार्ट देखो, वी नाउ डिस्कस रेक्टिफिकेशन यूजिंग द एग्जांपल्स। सपोज क्रेडिट सेल्स मोहन को 10,000 हुई, लेकिन मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई, तो हमको पता है कि एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन डेबिट होना चाहिए था 10,000 से,
ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी। मोहन डेबिट होना चाहिए था 10,000 से, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन मोहन का अकाउंट नहीं डेबिट हुआ। राइट, राइट। इन दैट केस हम क्या करते हैं, मोहन को डेबिट किया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया 10,000 से। इज इट ओके? सो वी पास दिस एंट्री। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंट्री। अच्छा, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम भूल गए, देखना। लेट अस जस्ट मूव अबव एंड सी दैट फैक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने अभी तक डिस्कस किया था कि सपोज व्हाट हैपेंड वाज कि डेबिट साइड वाज शॉर्ट। पहले वाले एग्जांपल में सेल्स तो हमने कर दी थी, लेकिन डेबिट वाज शॉर्ट बाय 15,000 क्योंकि दिवाकर के अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया था। राइट, ओके। सो डेबिट वाज शॉर्ट बाय 15,000। ठीक है, बट ठीक है, तो हमने क्या किया था, तो हमने इस 15,000 को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे हमको पता है दिवाकर है, तो हम दिवाकर में डाल देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट नो, तो हम सस्पेंस में डालते हैं। राइट, सो लेकिन हमेशा वो सस्पेंस अकाउंट में नहीं रहेगा। सस्पेंस अकाउंट इज अ वेरी टेम्पररी अकाउंट। ठीक है, हमको जब तक पता नहीं है कि वो एरर कौन से अकाउंट्स की वजह से है, तब तक हम टेम्पररी अकाउंट यानी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि वो एरर्स किस वजह से है, तो हम सस्पेंस अकाउंट से उन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, एंड दिस इज व्हाट दीज ट्रांजैक्शंस आर ऑल अबाउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको पता चला, सपोज हमने जब लोकेट किया कि चलो डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस है, तो जहाँ पे भी डिफरेंस था हमने वो साइड सस्पेंस अकाउंट में डाल दी। फॉर एग्जाम्पल मोहन की क्रेडिट सेल्स की जो एंट्री होनी चाहिए थी, लेट मी जस्ट सी, वो होनी चाहिए थी ये वाली, मोहन डेबिट 10,000 एंड सेल्स क्रेडिट। फिर हमने देखा डेबिट इज शॉर्ट बाय 10,000, तो हमने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा 10,000 से। बाद में पता चला कि अरे ये तो मोहन शॉर्ट था, इस वजह से नहीं हुआ, तो अब हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमने जो एंट्री पास की, मोहन को डेबिट करा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा 10,000 से। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द थर्ड एंट्री। लॉजिक समझ आया? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ओके, लेट्स सी द सेकंड वन नाउ। 10,000 था, 7,000 पोस्ट कर दिया, मतलब जो आपने पोस्ट किया ये नील के बजाय आपने 7,000 पोस्ट कर दिया, जबकि होना 10,000 चाहिए था। तो अब ऑब्वियसली डेबिट इज शॉर्ट बाय 3,000, तो आपने करा क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा बाय 3,000। राइट, अब आपको पता चल गया मोहन की गलती है, मोहन डेबिट होना चाहिए था, तो अब आप मोहन को डेबिट कर देंगे 3,000 से, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे 3,000 से, एंड दिस वुड बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। लेट मी शो यू ऑन द अदर पेज। सी, ठीक है, let's see the next entry now. I hope it is easy, you're able to understand. ठीक है, एक सेकंड, आई थिंक वी मिस्ड वन, यस। क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 was posted as 12,000। अब क्या हो गया, अब ये 10,000 होनी चाहिए थी, ज्यादा पोस्ट कर दी। अब क्रेडिट शॉर्ट है, तो आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, क्रेडिट किया इसको कितने से, 2,000 से। राइट, ये आपने किया। अब आपको पता चला ये गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि मोहन में ज्यादा पोस्ट किया है, तो मोहन को क्रेडिट करना चाहिए। तो अब आप सस्पेंस अकाउंट को रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट करेंगे 2,000 से, मोहन को क्रेडिट करेंगे 2,000 से, एंड दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। परचेज बुक को ओवरकास्ट कर लिया। लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग वंस। परचेज बुक ओवरकास्ट कर दिया, मतलब डेबिट हैज इंक्रीज्ड बाय 1,000। ठीक है, ओके, डेबिट ज्यादा कर दिया 1,000 से।
ठीक है। परचेज बुक ओवरकास्ट हुई 1000 से, मतलब क्या है कि परचेजेस ज्यादा डेबिट हो गया 1000 से। तो आपने किया क्या होगा यहाँ पे, लेट मी जस्ट मूव, राइट। आपने ये सब ट्रांसफर किए गलती से, टोटल जो आना चाहिए था परचेज बुक का, इसका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस आपने 1000 ज्यादा कर दिया। तो आपने क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा 1000 से टू मैच दिस थिंग, राइट। पर होना क्या चाहिए था, परचेजेस को ज्यादा करा है ना आपने, तो अब इसकी जो एंट्री होगी होगी पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, एंड द अमाउंट विल बी 1K 1000। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। परचेजेस को गलती से ज्यादा टोटल कर दिया, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट कम थी, तो आपने सस्पेंस खोल दिया। बाद में पता चला अच्छा ये गड़बड़ तो परचेजेस की वजह से थी, तो आपने फिर परचेज में ये बैलेंस ट्रांसफर किया, करेक्शन की, राइट। सो दिस इज द एंट्री, ओके, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस कि सपोज, ये तो हम तब कह रहे हैं कि हमने क्या हुआ, फाइनल अकाउंट्स बनाने थे, हमें दिखा कि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, डेबिट बड़ा है, तो हमने क्रेडिट में डिफरेंस ऐड कर दिया सस्पेंस क्रिएट करके, और इन दोनों को मैच करा दिया। फिर जब पता चला कि अच्छा ये तो इस वजह से था, तो हमने बाद में इसको रेक्टिफाई कर लिया, और ये सब हमने लास्ट डेट पे कर दी, फाइनल अकाउंट्स बनाते बनाते हो गया। व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंसेस क्यों हैं, व्हाट इफ, है ना, हमको उस ईयर के एंड में डिफरेंसेस नहीं मिले, देन व्हाट वी डू, देन वी ट्रांसफर, देन दिस सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हम इसको, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, और जब हमें एरर्स मिल जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में लोकेट करके रेक्टिफाई करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसको यूज करेंगे डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करेंगे, प्लस सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे, और ये सारे एरर्स को हम नेक्स्ट ईयर में करेक्ट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे हम, ओके। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया सब चीज, राइट, ओके। I think there was some other points. Let me just erase everything and let me come back to these, and then we'll just wind up the session in just 2 minutes. Just a second. All right. Let's go to the last page. All right. Okay. Guiding principles regarding the rectification of errors. What are these guiding principles? Let's discuss this. कि अगर error is committed in the original book of entries, then assume that all postings are done accordingly. These are some of the tips. They are some of the guiding principles that how do we record this. ठीक है, अगर रॉन्ग पोस्टिंग हुई है तो कैसे करेक्ट करेंगे, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया है, रॉन्ग साइट पे पोस्ट किया है, सो प्रोबेबली you can read about all these things. We've discussed all the major aspects. Let us quickly revise what we discussed today. आज हमने पूरा रेक्टिफिकेशन कंप्लीट किया, हमने डिस्कस किया कि दो तरीके के मेजर एरर्स होते हैं, अगर हम बात करें दोज दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड देन दोज दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। हम दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। दोज विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस उनके लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, एंड दोज विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस उनको हम जर्नल एंट्री पास करके करेक्ट कर लेते हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस। आई होप आपको पूरा ये सेशन समझ में आया होगा। Please revise this session, try to understand everything, practice things, read through this document, फिर आपको सब समझ में आएगा, right? Thank you so much for your patience.
and I'll see you next time.